our program used to give some errors. If that error, it can find it out in compile time. So if we'll execute or if we'll try to compile any program, and at the compile time, if we are getting some error, that error comes into the category of compile time error. And those error could be either syntax error or some sort of mainly they are syntax error, and some sort of missing parameters, or we are calling some function but we haven't defined it. We are looking for any variable, but we doesn't have that variable. So all those problems comes in the compile time, and and the compiler will detect the problem in the compile time. That is called error. Another type of error is so one is the syntax error, another is semantic error. Semantic error means some logical error used to come. Okay, and then in this particular logical error, one category is there that is called exception. Exception is some sort of error that usually come in runtime. So, or it may come in compile time. So there are some errors which comes into the category of exception. So exception usually come for not for the syntax error. So definitely exception is not a syntax error. Exceptions are some sort of errors which can be arises either in compile time or in runtime. So generally exceptions occur in runtime. An exception is a problem that arises during the execution of the program. So generally exceptions occur in the program. So as I told you, exception is also some sort of error, but we say that type of error called exception. And as I told you, exceptions is a problem that arises during the execution of the program. So at the time of the execution, this type of error will be arises. So a C++ exception is a response to an exceptional circumstances that arises while a program is running. So at the time of running the program, if we are getting some sort of problem, some sort of trouble, that error called exception. So when exceptions occur at runtime, so in the compile time, we doesn't have any information about these type of error, but when we run it, we got some problems. So what are the problems? The problems is, let's say if we are trying to divide anything by 0. If we divide anything by 0, my program will go to the infinite loop, because divide by 0 is an exception. Means we cannot divide anything by 0. So this will be an error, and the answer of this this type of equation is not with the computer. So computer cannot identify if we'll divide anything by 0. So that's why it comes into the category of exceptions. Second problem that can be arises is, let's say we are looking for the array. Okay, let's say the array size is 5 character, and we made a character array, and down the line, if we want to access, let's say the 7th character or 8th character, which is not in the boundary of that particular array, means we are looking for the value which is beyond the array boundation. So that is also a type of error. Error that comes into runtime, and that comes into the category of exceptions. What else can be possible? There is some other possibilities, like if we want to use the new operator, and what new operator will do, it will execute in a runtime and generate the memory for us, right? So runtime memory or dynamic memory will be allocated with the new operator, and that dynamic memory will be
allocated and the memory address will be given to the pointer. Let's assume that we doesn't have the memory to allocate. Means in the RAM is already full and we doesn't have the memory to allocate. So it cannot produce the address, right? The new operator cannot produce the address and it cannot give to the pointer. So these could be possible that we doesn't have any memory to give or to allocate in a runtime. So that is also a type of exceptions. So today we are going to understand that how we can handle these type of exceptions. If these type of exceptions occur in our program, so how we can handle it. This is our objective. So we can handle it, the exceptions we can handle it with some techniques, and the techniques we are going to learn. So the exceptions provide a way to transfer control from one part of the program to another. So whenever there is a exceptions occur, it provides a way to transfer control. So it provides some way to transfer the control from one part of the program to another part of the program. So let's say if in a program, let's say line number 5 is having some sort of exceptions, and we want to handle that exception. So we should put some code in the line number 5 so that my control will reach from 5 to another line where I have to handle that. Let's say line number 10. So in line number 10, I have written the code to handle the exceptions. So if exception occur in line number 5, it will give the control to line number 10. So that phenomena, is it possible in C++? So answer is yes. These type of phenomena is possible in C++. That is with the help of try, catch and throw. So try, catch are the blocks and throw is another set of program which used to throw the exceptions. So we'll see that try, catch and throw in this particular lecture. So what do you mean by throw? So throw is nothing but a program throws an exceptions when a problem shows up. So whenever we got the exception, जब भी हमको exceptions मिलेगा हमारे program में, throw क्या करेगा उसको? थ्रो कर देगा उसको. थ्रो जो कीवर्ड है वो उस एक्सेप्शंस को थ्रो करेगा और कहाँ थ्रो करेगा? वो थ्रो करेगा कैच ब्लॉक को. मतलब कैच ब्लॉक क्या करेगा? उस एक्सेप्शंस को कैच करेगा. लेकिन थ्रो कब थ्रो करेगा? जब वो एक्सेप्शंस ऑकर होगा. जब एक्सेप्शंस ऑकर नहीं होगा तो थ्रो उस एक्सेप्शंस को थ्रो नहीं करेगा. So a program throws an exceptions when a problem shows up. जब भी problem आता है, exceptions क्या करता है? उसको throw करता है. This is done using the throw keyword. So this is actually done using the throw keyword. So we'll use the throw keyword, and that you will understand that how it works. Then we have the catch block. This is a block. A program catches an exceptions with an exception handler at the place in a program where you want to handle the problem. The catch keyword indicate the catching of an exception. So this catch block, in the catch block, we use to catch the exceptions which is thrown by the throw statement, and in the catch block we'll write some instructions which used to handle the exceptions. Then we have the last one is the try block. So try block क्या होता है? Try block में the try block identifies a block of code in which particular exceptions will be activated. यहाँ पर जो भी exceptions है, अगर हमको लगता है कि ये जो हमारा set of program है वो आगे चल के problem दे सकता है, अभी नहीं दे रहा है but आगे चल के दे सकता है, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को या उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं. मतलब कि अगर हमको आशंका है, अगर हमको शक है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम है और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है हमारे प्रोग्राम के अंदर, वो फ्यूचर में कभी भी एक्सेप्शंस जनरेट कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग लिखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर.
ठीक है, सो यही है ट्राई ब्लॉक का काम. So a try block identifies a block of code for which particular exceptions will be activated. It is followed by, so we'll see the example here. Assume a block will arise an exceptions. Let's say हमारे try block है, ये try block के अंदर हम assume कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ कोड है ना, कुछ set of code है, वो set of code एक्सेप्शंस को जनरेट कर सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे? ट्राई लिखेंगे, कुछ कोड्स लिखेंगे. अगर वो कोड लगता है कि हमको जनरेट करेगा तो हम वहां पर थ्रो लिखेंगे. थ्रो के बाद जैसे ही थ्रो करते हैं, हमारा जो कंट्रोल है वो किस में चले जाता है? कैच में. कैच उस एक्सेप्शंस को, जो कि एक्सेप्शंस हमने थ्रो किया है, जैसे हम लोग इंटीजर एक्सेप्शन थ्रो किया है तो इंटीजर एक्सेप्शंस कैच होगा. अगर हमने फ्लोट एक्सेप्शन थ्रो किया है तो फ्लोट एक्सेप्शन कैच होगा. अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो वो ऑब्जेक्ट कैच होगा. तो ये कैच ब्लॉक उसके लिए हो सकता है. हमेशा कैच ब्लॉक इज फॉलोड बाय द ट्राई ब्लॉक. सो ट्राई ब्लॉक के बाद हम क्या लिखते हैं? कैच ब्लॉक को लिखते हैं. जनरली जो हमारा कोड होता है जो कि एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, उसको हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं. ट्राई ब्लॉक के अंदर ही मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई ब्लॉक के अंदर ही हम लोग थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि ट्राई ब्लॉक के अंदर ही अगर हमको पता चल जाएगा कि एक्सेप्शन आने वाला है तो हम उसको थ्रो कर देंगे. थ्रो करने के बाद जो कैच रहेगा हमारे प्रोग्राम में, जो कैच रहेगा उसका जो पैरामीटर रहेगा उसके थ्रू कैच करेगा. मतलब वो अगर पैरामीटर इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप का एक्सेप्शन कैच करेगा. अगर हमारा पैरामीटर फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट टाइप का एक्सेप्शन कैच करेगा. तो इस तरह से डिफरेंट कैच हम लोग लिख सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर. तो क्या पता चला हमको पता चला ट्राई, कैच और थ्रो. ट्राई क्या है? ट्राई एक ब्लॉक है. देखो ट्राई के बाद करली ब्रेसेस है, इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं. वैसे कैच के अंदर करली ब्रेसेस हैं, फिर उसके अंदर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं. बट कैच क्या है? यहाँ पर एक पैरामीटर लेता है, बट ट्राई कुछ भी पैरामीटर नहीं लेता. तो ट्राई के अंदर हमेशा वो कोड लिखते हैं या वो प्रोग्राम सेट ऑफ प्रोग्राम लिखते हैं जो कि फ्यूचर में एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है. और कैच के अंदर वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि उस एक्सेप्शन को कैच करने के बाद उसको हैंडल कर सकता है. ठीक है. और थ्रो क्या होता है? थ्रो इज अ कीवर्ड विच विल यूज टू थ्रो द एक्सेप्शन. सो हमको किस टाइप का एक्सेप्शन को थ्रो करना है वो थ्रो पे डिपेंड करता है. थ्रो के बाद अगर कुछ भी लिख देंगे तो उस एक्सेप्शन को थ्रो कर देंगे. हम लोग इसी को प्रोग्राम के थ्रू एक बार देखते हैं. सो वी विल सी द प्रोग्राम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. ओके. Let's see this program. Okay, this program is very simple. बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है. तो ओके, अगर आप लोग देखोगे सो हम लोगों ने मेन लिखा है, तो मेन फंक्शन के अंदर ही सब बना हुआ है. तो मेन फंक्शन के अंदर ये हुआ इसका इनर ब्लॉक. मेन का मेन फंक्शन के अंदर में क्या है? दो इंटीजर वेरिएबल है ए और बी. यूजर से हम लोग ए और बी की वैल्यू ले लेते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. x की वैल्यू क्या है? a माइनस बी है. ठीक है. फिर ट्राई ब्लॉक है, ये हो गया ट्राई ब्लॉक. ये यहाँ से यहाँ तक है ट्राई ब्लॉक. ट्राई के ब्लॉक के अंदर हम लोग लिखते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 0 के इक्वल टू नहीं है. अगर नहीं है 0 के इक्वल टू तो रिजल्ट हम लोग निकालते हैं. रिजल्ट क्या है? a बाई एक्स. जो भी वैल्यू हम लोग a का हम लोग यूजर से देंगे और जो भी x जनरेट होगा उसका डिवीजन, यही हमारा रिजल्ट है. अगर x की वैल्यू 0 हो गई है, मतलब डिवीजन बाय 0, हमको मिल गया एक्सेप्शन. अगर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन है तो उसको हम लोग थ्रो कर देंगे थ्रो स्टेटमेंट से. सी थ्रो क्या करता है? थ्रो इन ब्रैकेट विल राइट द वेरिएबल विच वी वांट टू थ्रो. अभी जो x है वो कौन से टाइप का है? x है इंटीजर टाइप का. तो हमको इंटीजर टाइप के ही पैरामीटर से कैच करना पड़ेगा. So catch आ गया ट्राई ब्लॉक के बाद. As I told you, catch block always followed by try block. ट्राई ब्लॉक के बाद ही कैच ब्लॉक को लिखा जाता है.
तो कैच हो गया। कैच क्या कैच कर रहा है? ये इंटीजर टाइप का एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, कैच कर रहा है, और उसको वेरिएबल किस में डाल रहा है? आई वेरिएबल में डाल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर उसको हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शन कॉट, मतलब एक्सेप्शन हमको पता चल गया है, और क्या है एक्सेप्शन? जो आई की वैल्यू होगी वो है एक्सेप्शन। ठीक है, फिर रिटर्न 0 कर दिया। अभी इसमें क्या हुआ, इस प्रोग्राम में ये हुआ कि जो भी हम लोग ए और बी की वैल्यू डालेंगे, अगर ए और बी की वैल्यू हम लोग बराबर डाल दिए, मतलब जैसे मान लो ए की वैल्यू भी 10 डाल दिए, बी की वैल्यू भी 10 डाल दिया, तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा 0। 10 माइनस 10 0। सो अगर एक्स 0 हो गया तो इट विल बी ए डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन। सो जब भी डिवाइड बाई 0 होता है तो रन टाइम पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, एक एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा। इज अ ब्लैंक आउटपुट, यू विल नॉट गेट एनी आउटपुट। सो बट हमको वैसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसको हैंडल कैसे करेंगे? उसको हैंडल करेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक से। तो ट्राई के अंदर वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रॉब्लम दे सकता है। अगर हम किसी को भी डिवाइड बाय 0 करेंगे तो प्रॉब्लम देगा। तो उसको हैंडल कैसे किया गया? डिवाइड बाय 0 तभी, डिवाइड बाय एक्स तभी किया गया जब एक्स की वैल्यू 0 नहीं है। अगर एक्स की वैल्यू 0 है एल्स पार्ट, तो उसको थ्रू कर दिया गया। ठीक है, मतलब डिवाइड बाय 0 इस प्रोग्राम में होगा ही नहीं, और अगर x की वैल्यू 0 मिलेगी तो उसको थ्रो कर दिया जाएगा। थ्रो करने के बाद यहाँ पर ये कैच होगा और आपका एक्सेप्शन यहाँ पर पता चल जाएगा। अगर अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो वो सिंपल वे पे प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर थ्रो का भी कोई काम नहीं होगा और कैच का भी कोई काम नहीं होगा। ठीक है, चलो रन करके देखते हैं। तो रन करने में पहले क्या बोला? एंटर द वैल्यू ऑफ ए और बी। ए और बी की वैल्यू एंटर करने के लिए बोला। तो हम लोग जब एंटर करेंगे ए और बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू ए में चली जाएगी, बी की वैल्यू बी में चली जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स क्या है हमारा? ए माइनस बी। ठीक है, सो ए को हमने मान लो, हमने क्या दिया? ए को दे दिया मान लो 20। ठीक है, और बी को दे दिया मान लो 10। तो क्या हो गया? अभी ए की वैल्यू हो गई 20, बी की वैल्यू हो गई 10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 10, राइट? सो a is 20, x is 10, एंड x की वैल्यू अगर 10 हो गई तो ये वाली ट्रू हो जाएगी, क्योंकि x is not equal to 0, 10 is not equal to 0, so this condition will be satisfied. It will come here. So it will be 20 divided by 10. So 20 divided by 10, 2 will be the result. And this throw is not going to work. अगर थ्रो ही नहीं होगा तो कैच का भी कोई यूज नहीं होगा। So इसको रन करते हैं, आंसर आएगा 2। दिख रहा है? रिजल्ट आएगा। एक बार और रन करते हैं। अब इसमें हम सेम वैल्यू डालते हैं ए और बी की। जब सेम वैल्यू डालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। तो उस इनपुट के लिए कैसे रिएक्ट करता है ये देख लेते हैं। ओके, तो चलो अभी ए और बी की वैल्यू को हम लोग सेम डाल देते हैं। तो 20 और मान लो 20 डाल दिए तो क्या होगा? x की वैल्यू हो जाएगी 0। x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन को थ्रो स्टेटमेंट थ्रो करेगा और कैच ब्लॉक कैच करेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शन कॉट, और एक्सेप्शन क्या है हमारा? x की वैल्यू क्या है? 0। तो x की वैल्यू 0 हुई तभी हमारा एक्सेप्शन कॉट हुआ, एक्सेप्शन वहां पर हमने पकड़ लिया। ठीक है, so that is called exception handling. So जनरली हम लोग क्या करते हैं? जो भी कोड हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है उस कोड को हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, और थ्रो स्टेटमेंट जनरली हम लोग ट्राई के अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं। तो थ्रो के लिए वैसा कुछ नहीं, बट थ्रो को कैच के अंदर जनरली हम लोग नहीं लिखते, क्योंकि और थ्रो के अंदर वैसे थ्रो को कहीं भी लिखा जा सकता है, बट जनरली अगर थ्रो करते हैं तो कैच क्या करेगा? उसको कैच करेगा
और जनरली जो कंपाइलर है वो नीचे देखेगा, मतलब आफ्टर दिस थ्रो स्टेटमेंट डू वी हैव एनी कैच, उसके बाद वो धीरे धीरे मैच करता हुआ जाएगा। अगर हमारे पास और भी कैच हैं, मान लो ये इंटीजर है, अगर हम लोग फ्लोट का बना दिए, मान लो कैरेक्टर का बना दिए, तो उसको वो मैच करता हुआ जाएगा, और जिसका मैच होगा उसके साथ वो कैच को कंट्रोल दे देगा, और उस वो वाला कैच का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग और भी प्रोग्राम देखते हैं थ्रो और कैच से रिलेटेड। Let's see this program. In this program we have a separate function. एक फंक्शन है यहाँ पर डिवाइड फंक्शन। डिवाइड फंक्शन क्या कर रहा है, 3 वैल्यू ले रहा है एक्स वाई और जेड। वी आर इनसाइड फंक्शन बोल रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, अगर x और माइनस वाई करते हैं, अगर वो इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या होगा, तो एक रिजल्ट वैल्यू में z डिवाइडेड बाई x माइनस 1। समझ में है, मतलब x माइनस वाई को हम लोग फाइंड आउट किए, अगर ये 0 नहीं है तब तो ये एग्जीक्यूट करेगा और रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये 0 है तो थ्रो स्टेटमेंट कॉल होगा, और थ्रो क्या करेगा, x माइनस वाई जो जनरेट हुआ है उसको थ्रो कर देगा। तो x माइनस वाई मतलब इंटीजर को थ्रो करेगा। अब उसके बाद ये थ्रो यहाँ पर लिखा गया। फिर उसके बाद ट्राई, मेन के अंदर ट्राई ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, उस डिवाइड को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड कॉल होने पे ही हमको पता चलेगा कि एक्सेप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्सेप्शन आ सकता है, राइट। यहाँ पर डिवाइड बाय 0 हो सकता है, इसलिए ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग डिवाइड को कॉल करेंगे। तो 2 डिवाइड को कॉल किए, एक डिवाइड में हम लोग x और y की वैल्यू को सेम दिए, मतलब एक्सेप्शन आएगा। दूसरे डिवाइड में हम लोग x और y की वैल्यू को अलग अलग दिए, मतलब डिवाइड नहीं आएगा, मतलब सॉरी एक्सेप्शन नहीं आएगा। फिर उसके बाद कैच लिखा गया है। कैच में सिर्फ हम कोई भी इंटीजर को कैच करेंगे और एक्सेप्शन कॉट बोल देंगे। ठीक है, चलो इसको रन करते हैं। तो पहले में तो एक्सेप्शन कॉट होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, वो सीधा सीधा क्या बोलेगा, एक्सेप्शन कॉट। दूसरे वाला जो कॉल है उसमें एक्सेप्शन नहीं आएगा और रिजल्ट प्रिंट होगा। ठीक है, रन करते हैं। सो पहले में आपको मिला, हम कहाँ गए, इनसाइड ट्राई ब्लॉक, फिर उसके बाद इनसाइड फंक्शन, और उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन कॉट। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा पहले तो ये प्रिंट हुआ, वी आर इनसाइड ट्राई ब्लॉक, सो वी आर इनसाइड ट्राई ब्लॉक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये कॉल हुआ, ये जैसे ही कॉल होगा कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। क्या प्रिंट होगा, वी आर इनसाइड फंक्शन, तो यही प्रिंट हुआ, वी आर इनसाइड फंक्शन। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि x और y की वैल्यू सेम है तो x माइनस वाई क्या हो गई, 0 हो गए, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और थ्रो होगा। तो थ्रो क्या हुआ, इंटीजर थ्रो हुआ। ये कहाँ पर कैच हुआ, यहाँ पर कैच हुआ, क्योंकि ट्राई जहाँ पर है वहीं पर कैच लिखेंगे, तो यहाँ पर वो कैच हुआ और ये एक्सेप्शन कॉट हो गया। फिर यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर नहीं जाएगा, फिर यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर नहीं जाएगा, तो दूसरा जो कॉल है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ एक ही कॉल एग्जीक्यूट होगा। अभी मान लो हम इसको 20 कर लेते हैं, मान लो इसको 20 कर लेते हैं, ये हो गया 10 और ये हो गया अपना 10 10। अभी क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 20, y की वैल्यू क्या हो गई 10, तो x माइनस वाई क्या हो गया 10। 10 is not equal to 0, yes, then it will going to execute, so 30 divided by 10, it will be 3, so 3 will be the output। उसके बाद कंट्रोल आ जाएगा यहीं पर। ठीक, फिर उसके बाद ये वाला डिवीजन कॉल होगा। जब ये वाला डिवीजन कॉल होगा तो यहाँ पर क्या है 10 और 10, तो x क्या हो जाएगा 10, y हो जाएगा 10, 10 minus 10 it will be 0, 0 not equal to 0, no, then else पार्ट में आ जाएगा 0, sorry 10 minus 10 is 0, 0 is an integer will be caught here and it will tell you that exception caught। तो अब इस समय क्या होगा, इस समय हमको पहले वाला जो
कॉल डिवीजन फंक्शन का जो कॉल है वो पहली बार रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा और दूसरी बार एक्सेप्शन कॉट प्रोड्यूस करेगा। देखो पहली बार रिजल्ट प्रोड्यूस किया और दूसरी बार एक्सेप्शन कॉट प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो अगर हमको पहले ही बार एक्सेप्शन मिल जाता है तो फिर से दूसरा वाला डिवीजन कॉल नहीं होगा, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में हुआ। अभी हम लोग क्या किए, पहला जो डिवीजन है वो कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया तो कंट्रोल यहीं पर आ गया। फिर उसके बाद दूसरा वाला कॉल को डिवाइड फंक्शन के कॉल को कॉल किया गया, इसलिए दूसरे वाले ने एक्सेप्शन थ्रो किया और एक्सेप्शन कॉट प्रिंट हुआ।